Hello everyone, welcome to the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. We're starting with Paper 1, Unit 2, Part B, BAM, which is the value added material. This is going to be a short video. I just made this video so that you know the basic differences between major theoretical strands. And these are the questions that lot of UPC aspirants and lot of sociology optional aspirants get confused with. So I have tried to simplify the process for you. Let us dig in. Firstly, a lot of people get confused between interpretivism and symbolic interactionism. Because this is also qualitative in nature and this is also qualitative in nature. Both are focusing on individual experiences. So what is the difference? One is the nature of reality. In the case of interpretivism, the reality is subjective. The reality is subjective and it is constructed through individual interpretations. इसका एग्जाम्पल ले तो सपोज करो तुम एक कॉन्सर्ट में गए, तुम टेलर स्विफ्ट के एक कॉन्सर्ट में हो या फिर तुम अनुप जैन के एक कॉन्सर्ट में हो. वहाँ पर तुम देखोगे दो तरीके के लोग तुमको देखने को मिले. एक इंसान तो बोल रहा है कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई सोशलाइज, मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन. एंड दूसरा इंसान उसी वक्त ये बोल रहा है कि क्या शोर है, कितना चिल्ला रहे, चुपचाप गाना क्यों नहीं सुन सकते. सो द सेम सोशल इवेंट, different people can have different individual interpretations. This is the fascinating part about the nature of reality in the case of interpretivism. When we talk about symbolic interactionism, social reality construct कैसे होती है? Through shared symbols and interactions. इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कॉस्प्ले. कॉस्प्ले क्या होता है? बेसिकली यू ड्रेस अप एज फिक्शनल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लो. सपोज करो आई एम एट अ कॉस्प्ले पार्टी एंड अ कॉस्प्ले इवेंट. वहाँ पर आई हैव ड्रेस्ड एज अ किंग and somebody dresses a gunda. ठीक है, तो the way other people are going to act with me at the cosplay event is like people are going to bow at me because I'm a king or a queen, whatever. And then when we're talking to a gunda, my demeanor, my body language will change because we do share some symbols and interactions, and our social reality at that point of time at the cosplay event is constructed through those. Is that clear? Now the next point of difference is the focus on social action. So in the case of interpretivism, the focus is on understanding the motives, intentions and meaning behind the social actions. It will examine how individuals' subjective interpretations influence their behavior and decision making. What does this mean? So imagine you're studying a social platform. I've already dealt with this example. I'm just giving this example again to make it clear. So when I'm studying a social platform and I'm saying what is its impact on the self identity. ठीक है, मैं सोशल प्लेटफॉर्म का एनालाइज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि सेल्फ आइडेंटिटी में मेरी सेल्फ स्टीम पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो एक इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच क्या होगी? इट विल इन्वॉल्व एग्जामिनिंग कैसे इंडिविजुअल्स उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं टू प्रेजेंट देयर ऑनलाइन पर्सोनास. क्योंकि आपको जो ऑनलाइन पर्सोना है वो आपके रियल लाइफ पर्सोना से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है. इंस्टाग्राम पे यू शो योर हैप्पी मेमोरीज मोस्टली, राइट? बट लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज दैट हैप्पी. तो ये हेल्प करेगा इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच. इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशंस, द इंटेंशंस एंड द पर्सनल इंटरप्रिटेशन बिहाइंड द कंटेंट दैट एन इंडिविजुअल पोस्ट्स. ठीक है, अब यही बात करते हैं अपन फोकस ऑन सोशल एक्शन. इसके अंदर भी है. इसके अंदर क्या है सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में? इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सिम्बल्स एंड सोशल इंटरैक्शन इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. अब यहीं पर लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज करो after my office hours I meet up with my colleagues, and even if I don't meet up with my colleagues, we share a meme page. यहाँ पर हम लोग memes share करते हैं. ठीक है, तो हम लोग कॉमन सिम्बल्स कॉमन चीज़ों के लिए कर सकते हैं. जैसे हमने एक बॉस के लिए एक सिंबल बना रखा है. दीज सिम्बल्स मे बी ओनली लाइक द 5 of us, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमने लिमिटेड बना रखी है, उनको पता होगी. बट दे डू गिव अस अ डिफरेंट मीनिंग टू आर इंडिविजुअल. लाइक दे प्रोवाइड अस विद अ डिफरेंट individual meaning for our interaction, and it helps shape our behavior. ठीक है, let's talk about research methods as the third point of difference. Well, the interpretivist method and the symbolic interactionism method both focuses on qualitative research methods only, of course. But here in the case of interpretivism, it is to delve into individual subjective experiences and meanings. जैसे यहाँ पर क्या करूँगी, किस तरीके के होंगे? जैसे इन डेप्थ इंटरव्यू करूँगी मैं, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट और नैरेटिव्स. वाइल इन द केस ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म, व्हाट विल आई डू? I will participate in
social interactions. I'll try the method of participant observation. I'll work on focus groups. मैं ग्रुप्स बनाऊंगी, मैं देखूंगी आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी क्या स्पेशल सिम्बल्स है और ये सिम्बल्स क्या मीनिंग होल्ड करते हैं. यही तो होता है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म. सो दिस इज हाउ दीज टू theories differ from each other. I think it's very clear now and the difference is very visible to you because बहुत बार aspirants इसमें confuse हो जाते हैं. So now this is clear. Let's move on to the next one. इसके अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. अब फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करें तो दोनों का एम्फेसिस फंक्शन पे तो हो गई बिकॉज दोनों फंक्शनलिज्म ही है. बट जहाँ पर फंक्शनलिज्म एग्जामिन करता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इसी पे एक्सपैंड करता है एंड इट एम्फेसाइजेस ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. जैसे सपोज करो, इसका एग्जाम्पल लूँ अगर मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, तो मैं बोलूँगी म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा. वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तुमको इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे और हर इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का साउंड निकालेगा और हर तरीके का साउंड, इतने तरीके के साउंड्स एक ऑर्डर में चलते चलते अपना अपना फंक्शन करते हुए जब मिलेंगे तब वो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा बनेगा. ठीक है. एंड ईच एंड एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड इट्स डिपेंडेंट ऑन हाउ द अदर इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग प्लेड. तो इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस है. सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज एंड दिस इज हाउ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक्सपैंड्स ऑन फंक्शनलिज्म. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज द एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज. अब सोशल चेंज की बात करें तो फंक्शनलिज्म क्या होते हैं, वो थोड़े दे आर वेरी नॉट वेरी accepting of social change as such. They examine how different they tend to focus on stability and equilibrium of society over time. वो बोलते हैं अगर सोशल चेंज होता भी है तो बहुत धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. जबकि अगर अपन इधर बात करें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल चेंज. वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है चेंज, अचानक से भी हो सकता है. एंड हाउ इट, बस वो उसी चीज़ का जो फंक्शन है वो डिटरमाइन करते हैं कि जो चेंज हो गया अब उसका क्या फंक्शन है, अब वो कैसे जो दूसरे सोशल स्ट्रक्चर्स है उसको इम्पैक्ट कर रहा है. जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ बात करें फंक्शनलिज्म में बात करें तो टेक्नोलॉजी अगर बहुत सडनली चेंज हो जाए, इस तरीके के फैक्टर्स को ये लोग अकाउंट ही नहीं करते थे. अगर ये हो भी रही है तब ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, अगर डिसइक्विलिब्रियम आएगा भी तो ओवर टाइम कुछ हल्का सा पुश फैक्टर होगा एंड देन वी विल बी बैक एट द इक्विलिब्रियम स्टेट. बट इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्हाट वी टॉक अबाउट इज that there can be quick technological changes. For example, ये example है टेक चेंजेस. कोविड हो गया, ठीक है, और ये अचानक से पूरे और जो स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर इज एंटायरली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. सो इट विल इम्पैक्ट ऑल ऑफ दोज एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड द चेंज जो कि अभी हुआ है दैट कैन चेंज ऑल्सो. और इसी को एनालाइज कर लेंगे ये लोग. सो दे एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी, दे एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल चेंज. These people, they focus on stability only. The third point is the focus on social integration. When we're talking about the focus on social integration, what does social integration means? Integration क्या होता है? Solidarity. ठीक है, तो solidarity community की required होती है for maintaining social order as per functionalist. ये highlight क्या करता है कि कुछ shared norms होते हैं, कुछ shared values होती है, इससे social cohesion आता है. ठीक है, और social cohesion जब होता है इसी की वजह से यहाँ पर stability रहती है सोसाइटी में. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी क्या है, वो भी ये बोलता है कि हाँ सही बात है कि सॉलिडारिटी होनी चाहिए. इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन सोशल इंटीग्रेशन. पर ये एक्सपैंड किससे करता है, बिकॉज इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन या तो फैसिलिटिंग या फिर हिंडरिंग द इंटीग्रेशन. कुछ भी सोशल फैक्टर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो वो फैसिलिटेट कर सकते हैं सोशल इंटीग्रेशन को या हिंडर भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक्नॉलेज करते थे पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल चेंज. तो दीज टू पॉइंट्स आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड. क्योंकि सोशल चेंज हो सकता है, एक्नॉलेज करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा नहीं, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा. हो सकता है वी रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम ऑल टुगेदर एट अ वेरी फास्टर पेस. ओके, नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक. दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो. होप यू लाइक्ड इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.